Assalamualaikum and good afternoon, dear students. Hope you all are safe and sound. This is your general science class. So kindly, dear students, sit attentive. ठीक है? Okay. Let me revise the previous lecture. कोई बता सकता है कल हमने क्या पढ़ा था? Okay. Let me revise the previous lecture. So yesterday we have studied the component of ecosystem. Component of ecosystem हमने पढ़ा था कि two components है abiotic and biotic components. Abiotic components, non-living components, and non-living components को कहते हैं just like the temperature, air, water, light, and soil. While biotic components, living components है और living components क्या है ecosystem के? That is the natural plants, animals, and humans. ठीक है? So that is the biotic and abiotic components that we have studied. That the biotic components are further divided into three groups. That is the producers, consumers, and decomposers. Producers में हमने पढ़ा था कि plants are the producers because the plants make food for themselves and for animals. फिर हमने पढ़ा था consumers. Consumers क्या है? Those animals which cannot make their own food. That depends on plants and other animals for their food. Then we have studied the decomposers. Decomposers में हमने पढ़ा था bacteria को कि bacteria decompose the dead body of plants and animals to get their food. Then we have studied the food chain. Food chain हमने पढ़ा था. Let me revise. अब next आज के topic में हम link of food chain पढ़ेंगे. Let me revise the food chain. मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है? तो बच्चे फूड चेन क्या था? फूड चेन हमने पढ़ा था कि इट इज द सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ये फूड एनर्जी के ट्रांसफर वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फूड ट्रांसफरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड द फूड चेन. फूड चेन में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूसर है. अब प्लांट्स को जो है plants are eaten by the herbivores. Herbivores हमने पढ़ा था कि those animals which eat plants. ठीक है, फिर the herbivores are eaten by the carnivores. Carnivores हमने पढ़ा था कि those animals which eat other animals. ठीक है, so that is the food chain की एक organism दूसरे organism पर as depend करता है for the source of food. ठीक है, so that is the food chain. Food chain क्या है? Food chain is the sequence of transfer of food energy from organism to organism. ठीक है, in the food now let me length of the food chain. Okay, आज वाले lecture में देखिए length of the food chain. ठीक है, the food chain consists of 3 links. How many links? 3 links. ठीक है, in any food chain the first living thing is a producer. Keep it in mind that in every food chain, the first living thing is a producer. First living thing producer. Producer की बात जब food chain में आ जाए तो आपके mind में automatically plants आने चाहिए. ठीक है, कि food chain में producer की बात हो रही है तो it's mean यहाँ पर बात हो रही है plants की. ठीक है, because plants make their own food for themselves and for other animals. ठीक है, for example plants and algae. Plants, algae क्या है? Algae are the aquatic plants and aquatic plant which provide food for the aquatic animals. जो कि समंदर में जो animals होते हैं ना उनको जो food provide होता है वो algae से provide होता है. ठीक है, the algae is the aquatic plant. The second link, the second main link is the herbivorous animal. For example rat, zebra and goat. अब सेकंड जो आपका फूड चेन होगा that must be herbivores. ठीक है, क्यों herbivores? Because the plants are the producers, so the plants have been eaten by the herbivores. Herbivores are the animals which eat plants. ठीक है, तो सेकंड आपका फूड चेन लिंक जो होगा that will be the herbivores. ठीक है, then the herbivores are eaten by the carnivores. तो थर्ड लिंक आपका होगा carnivores. फूड लिंक का थर्ड लिंक जो होगा वो होगा कार्निवोर्स, क्योंकि देखिए प्लांट प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स को फिर खाते हैं हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, सम कार्निवोर्स को खाते हैं अदर कार्निवोर्स.
carnivores. ठीक है, so that is the 3 links of the food chain. समझ आ गई food chain की? Actually food chain है क्या चीज? Simply अल्फाज में फिर से सुने, मैं बार-बार बता रही हूँ कि it is the series of the transfer of food from organism to organism. Then links of the food chain consists of 3 links. In any food chain, first link जो है that must be the producer, the second link must be the herbivores, and the third link must be the carnivores. Clear? अब carnivores में examples है lion, fox and snake. ठीक है, lion भी है, carnivores है ना, other animals खाते हैं, snake भी animals खाते हैं, fox भी animals खाते हैं. ठीक है, now अब मैं आप लोगों को ये जो बुक में एक्टिविटी दी गई है ना, ये एक्टिविटी आपको मैं सोल्व फॉर्म में दिखा रही हूँ. ठीक है, सोल्व फॉर्म में आप लोग ऐसे देखिए, जो फर्स्ट लिंक, हाँ अब देखिए फूड चेन को, द 3 लिंक्ड फूड चेन, फर्स्ट 3 लिंक्ड फूड चेन को देख के समझे कि कौन है, कौन इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर, प्लांट. rat है, rat is what? Rat is the herbivores. Okay, and all है, all is the what? All is the carnivores. So the plant is eaten by the rat and the rat have been eaten by the all. क्या हुआ, ये एक फूड चेन लिंक फॉर्म में आ गया ना, कि पहले प्रोड्यूसर आ गया, फिर herbivores आ गया और फिर carnivores आ गया. So 3 लिंक फूड चेन हो गया ना कंप्लीट. देन सुने, अब देखिए फर्दर देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि carnivores है तो carnivores को और other carnivores are eaten by the कार्निवोर्स. तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे ना कि कुछ कार्निवोर्स ऐसे है जो कि कार्निवोर्स को ही खाते हैं. सो फिर मूव करें, दैट इज द 4th लिंक फूड चेन. 4 लिंक फूड चेन में क्या होता है, कैरेट है, कैरेट इज द प्रोड्यूसर प्लांट. ठीक है, कैरेट इज ईटन बाय द रैबिट, रैबिट क्या हुआ, हार्बिवोर्स हुआ ना, प्लांट्स खाता है. द रैबिट इज ईटन बाय द फॉक्स, फॉक्स क्या हुआ, carnivores हुआ. So the carnivores has been eaten by the carnivores. देखो अब fox भी carnivores है और fox को भी एक carnivores ही खा रहा है ना. ठीक है, so that is the 4 link food chain. 4 link food chain में क्या हो रहा है, the carnivore has been eaten by the carnivores. Clear? Now this is the अब नीचे देखिए 5 link food chain. 5 link food chain में अब आप लोग खुद बताएं. चलिए शाबाश. देखिए ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है. ठीक है, ग्रास होपर है, अब ग्रास होपर है तो प्लांट्स को खा रहा है क्या, ग्रास होपर. ग्रास होपर इज द फूड ऑफ व्हाट, फ्रॉग. फ्रॉग इज द फूड ऑफ पैथन. ठीक है, एंड पैथन इज द फूड ऑफ ईगल. देखो तो फूड चेन में एनर्जी स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हो रही है ना. फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एज अ सोर्स ऑफ फूड डिपेंड कर रहा है ना. सो दैट इज एक्चुअली द फूड चेन. फूड चेन की समझ आ गई, जहां पर सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर एज अ सोर्स ऑफ फूड डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब ये सारे फूड चेन है. होप अभी आप लोगों को फूड चेन क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, कि एनर्जी स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म किस तरह ट्रांसफर हो रही है. पहला स्टेप आप लोगों की माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका प्रोड्यूसर ही होगा, प्लांट्स ही होगा. ठीक है, फिर सेकंड आपका होगा हर्बिवोर्स. फूड चेन ऐसा नहीं है कि अब आप लोग ऐसी फूड चेन बनाए कि पहले स्नैक है तो स्नैक के बाद आप लोग ग्रास प्रोड्यूसर को रखे, प्रोड्यूसर के बाद फिर आप लोग कार्निवोर्स को रखे, कार्निवोर्स के बाद हार्बिवोर्स को रखे. नो, ये एक प्रोसेस है. ठीक है, पहला फूड लिंक है, अभी हमने पढ़ा कि लिंक वाइज ये इसी तरह अरेंज फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है. ठीक है, ग्रास है, ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर इज द फूड ऑफ द फ्रॉग इज द फूड ऑफ द पैथन and python is the food of the eagle. So carnivores को खा रहे हैं, herbivores जो है वो plants को खा रहे हैं. तो each and every organism depend on one another for food. ठीक है, so that is the food chain. Clear? यहाँ पर another देखिए, नीचे अब आप लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एनर्जी है, प्रोड्यूसर है एनर्जी. अब आप लोगों को याद होगा कि द प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो प्लांट्स को एनर्जी कौन दे रहा है, सनलाइट दे रहा है. ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रही है, प्रोड्यूसर है, फूड प्रोड्यूस कर रही है. कंज्यूमर है, देखिए कंज्यूमर को देखिए, रैबिट को, रैबिट इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर में हमने पढ़ा कि दोज एनिमल्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड. तो कंज्यूमर इसे कहते हैं. देखिए अब रैबिट है, रैबिट को तैयार खुराक मिल रही है. देखो बस
रैबिट इज द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ने खुराक प्रिपेयर किया, रैबिट को तैयार खुराक मिल गया। देखें अब रैबिट को खा रहा है ईगल, ईगल भी कंज्यूमर है, बिकॉज those animals which cannot make their own food and depends on other animal or plants for the food is called consumer. फूड चेन की समझ आ गई, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कंज्यूमर। और अगर इसी तरह देखें प्रोड्यूसर हार्बिवोर्स कार्निवोर्स, क्लियर, इसकी समझ आ गई है। अब नेक्स्ट देखें, अच्छा प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। अब प्रीडेटर क्या है बच्चे, व्हाट इज प्रीडेटर? प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। अब जंगल में शिकारी कौन कौन से एनिमल्स है? शिकारी एनिमल्स जंगल में कौन कौन से जो दूसरे एनिमल्स को किल करके अपना फूड लेते हैं? तो प्रीडेटर कौन से एनिमल्स हुए? प्रीडेटर हो गया लायन, हो गया लायन, टाइगर, शार्क एंड लेजर्ड। Lion, tiger, shark and lizard, these are the predator because these animals kill other animals for their food. So that's why that is called predator. Predator means shikari. Predator mean what? Shikari. Shikari जानवर कौन कौन से हैं? Lion, tiger, shark, lizard और भी animals है, ठीक है? So shikari, because these animals kill other animal for their food. While prey अब क्या है? शिकार को कहते हैं, शिकार को। अब ये predators कौन कौन सी जानवरों को अपना शिकार बनाती है? देखिए zebra है, deer है, rat है and fish है। So these are the prey because these animals have been killed and eaten by the predator. That's why that is called prey. प्रे कहते हैं शिकार को, प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। शिकारी एनिमल जो है वो लायन, टाइगर और भी बहुत सारे एनिमल्स है, शार्क, लिजर्ड, वाइल्ड एनिमल्स तो बहुत सारे हैं शिकारी जो दूसरे एनिमल्स को शिकार बनाते हैं, ठीक है? तो दोज एनिमल्स, द एनिमल्स व्हिच ईट्स बाय किलिंग अनदर लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। वो शिकारी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, tiger, shark and lizard. While the living thing which is killed and eaten by the predator is called a prey. Is called a what? Prey. शिकार कहलाती है, ठीक है? For example, zebra, deer, rat and fish. The interaction अब ये जो predator और prey की दरमियान जो interaction होती है, that interaction, that relationship is called predation. The interaction between the predator and prey is called predation. For example, को सुने, deer is killed and eaten by lion. Deer is killed and eaten by lion. So lion is the predator and deer is the prey, shikar. Here lion is the predator and deer is the prey. Similarly, goat is predator and grass is its prey. Predator और prey की समझ आ गई? The animals, अब predator क्या है? Predator है शिकारी, ठीक है? The animals which eat other animals are called predators. For example, lion, tiger, shark. The animals which are killed by the predator are called prey, like zebra, deer, rat, fish. Okay? The interaction or the relationship between the predator and the prey is called predation. क्लियर? समझ आ गई इस टॉपिक की? समझ आ गई तो कमेंट्स में बता दें, नहीं आई तो बता दें, मैं दोबारा रिवाइज कर लूंगी, ठीक है? अब कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन किस तरह होती है? पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देती हूँ। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर क्लासरूम। अब क्लासरूम है, क्लासरूम में आप सब बैठे हो। क्लासरूम में रिसोर्सेज क्या है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक रिसोर्स हुआ आपकी क्लास का, लाइट एंड फैन, ठीक है? अब हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के साथ compete करेगा ना, competition करेगा ना, to sit in front of the blackboard, to sit under the fan, to sit under the light. हर एक स्टूडेंट competition करेगा ना एक दूसरे के साथ, वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए एक दूसरे के साथ competition करेगा।
कुछ स्टूडेंट्स कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ पोजीशन लेने के लिए। इसी तरह एग्जैक्टली सेम एनिमल्स में भी होता है, जहां पर वो रहते हैं एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है, वो भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं फॉर व्हाट, फॉर फूड एंड फॉर प्लेस, ठीक है। अब वो तो अब जाहिर सी बात है एनिमल्स तो आप कंपटीशन पोजीशन के लिए नहीं कर सकती ना। अब एनिमल्स किस तरह क्यों कंपटीशन आपस में करते हैं, किस लिए करते हैं, टू गेट द रिसोर्सेज इन द अवेलेबल लिमिटेड एरिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फूड के लिए और प्लेस के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ फिर लड़ती झगड़ती भी है, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली कंपटीशन। समझ आ गई ना। क्लास में जिस तरह कंपटीशन, क्लास में रिसोर्सेज की एग्जांपल मैंने आपको ब्लैक बोर्ड की दे दी, लाइट की दे दी, फैन की दे दी, ठीक है। अब हर बच्चा एक दूसरे के साथ गर्मियों में आप लोग करते हो ना एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन के, everyone wants to sit under the fan, ठीक है। हर एक बंदा चाहता है that they sit in front of the blackboard, ठीक है। So that is the competition. अब organisms के दरम्यान में भी इस तरह competition होती है। देखिए, all the organism living in an ecosystem depend on the resources. Resources क्या है, food है, grass resources है, food other animal resources है, and place है, which are available in that area. Every area can provide food and place to a limited number of living things. The limited resources in an ecosystem compel the living things. Compel mean force, मजबूर करती है living things को to compete for food and place. For example, in the grassland, all the herbivores compete for grass. जो ग्रास लैंड होती है, ऑल द हार्बिवोर्स कंपीट फॉर ग्रास, वो ग्रास के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, ठीक है। कंपटीशन की समझ आ गई। फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, एक लिमिटेड एरिया है, एक क्लासरूम में सिर्फ एक फैन है, ठीक है, एक फैन है, एक रिसोर्स का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और अब एक फैन है और 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब 500 बच्चे एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे कि वही इस पंखी के नीचे बैठ जाए, ठीक है। So that is actually the competition. Competition क्या है? Competition is actually a relationship between organisms in which one is harmed when both are trying to use the same resources. जब दोनों कोशिश करेंगे कि वही same resources use करें, तो एक को जरूर वो harm करेंगे, ठीक है। So competition is actually the relationship between organisms in which one is harmed when both are trying to use the same resources. Clear? Competition की समझ आ गई? समझ आ गई हो तो बता दें। चलिए अपने साथ अब होमवर्क नोट करें अपने साथ। होमवर्क आप लोगों का है लर्न द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। आप लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5 बायोटिक कंपोनेंट्स एंड 5 एबायोटिक कंपोनेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, याद करने हैं, ठीक है। और कल आप लोगों ने पिक्चर्स लेकर मुझे कमेंट्स में वो शो करनी है कि बायोटिक कंपोनेंट